myself Kanupriya ma'am is back again with maths. Hope you all are doing good. All are fit and fine at their home. So today we will start with 1G exercise. Yeah, we already started in last class. Okay, I hope you have understood and you know how you have to do the word problems. So today I'll start with the fourth sum today. Okay, we have completed till third sum. I gave you till third sum. Hope you have understood. So I'll start with fourth sum. It is also as similar as the first, second and third sum what we did. As I told you in last class, a quick revision for you all that you need to understand the question first for the word problems, and then you can solve easily. You will automatically get to know that what you have to do in the sum. Okay, so I'll read out the question for fourth. Hope you all are carrying your textbooks with you. It is open at by your side while watching the video, a notebook and a pen compulsorily, and other things if you need. Okay, and students, one advice: when you sit for studying, see, we are not meeting physically, we are not in school, and if you remember in school also, if you had to drink water in between the period, you had to ask teacher that ma'am, may I drink water, ma'am, I'm like feeling this and that. So like we are meeting virtually, not an issue because the situation is like that. So I advise you at least take a bottle of water and sit with you. Okay, so that if you are thirsty, in case you can drink, and avoid moving here and there, going washrooms if it is not very urgent. Okay, so because it is just very short videos I make for you so that you are comfortable also and you understand also. It's not very long. Fine, students. So now I'll start with the fourth sum. Hope you all will consider what I have said right now. Okay, chalo. Fourth sum. On one day, rickshaw puller earned rupees 160. Out of his earnings, he spent rupees 26 integer 3/5 on tea and snacks. Okay, so देखो basically क्वेश्चन में पूरे क्या है, I'll tell you कि एक रिक्शा पुलर है, रिक्शा चलाता है जो, उसको क्या है, वो पूरा टोटल मनी कितना अर्न किया है उसने, टोटल अर्निंग अगर उसकी मैं लिखूं तो उसने अर्न किया 160 रुपीज़. ओके, 160 रुपीज़. फाइन. नाउ आउट ऑफ हिज अर्निंग्स ही स्पेंड. अब देखो, अब हम अर्न करते हैं, जब हमारे पेरेंट्स अर्न करते हैं तो ऑब्वियसली स्पेंडिंग्स भी होती है. ऐसे तो है नहीं कि हम अर्न करके रख देते हैं उसको. जब हम अर्न करते हैं मनी तो स्पेंडिंग्स भी होगी. तो वैसे रिक्शा पुलर की भी स्पेंडिंग्स हुई है. उसने टी एंड स्नैक्स पे स्पेंड किया है, फूड पे स्पेंड किया है, एंड रिपेयर करवाया है रिक्शा को, उस पर स्पेंड किया है. सो हाउ मच दैट ही सेव ऑन दैट डे. मतलब उसने अर्न पूरा टोटल किया 160 एंड देन उसका स्पेंड, तो मनी आप लिखोगे मनी स्पेंड ऑन टी एंड स्नैक्स. ठीक है, पहले आप सारी इंफॉर्मेशन लिख दोगे जो भी आपको दे रखी है क्वेश्चन में, सो दैट इट्स वेरी इजी टू सॉल्व. रुपीज 26 इंटीजर 3/5. ओके, फाइन. आप इसको कन्वर्ट कर दोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. देन सेम मनी स्पेंड ऑन फूड, मैंने मनी ऑन स्पेंड नहीं लिखा है सो दैट यू अंडरस्टैंड टू सेव द टाइम. Okay, rupees 50 integer 1/2. I hope you all know how to convert in mixed fraction to improper fraction, right? Okay, so now next, money spent on repairs. Okay, I can just write repairs because I know it is a rickshaw. He is a rickshaw puller, so he'll be spending on repairs of rickshaw itself. So rupees 16 integer 2/5. Okay, फाइन. ठीक है, अब अगर आपके पास इसका, अब इसमें आप क्या कर सकते हो आगे, इनकेस आपको नहीं समझ में आ रहा हो. वैसे काफ़ी बच्चों को तो समझ में आ गया होगा. आई हैव मोस्ट ऑफ द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ओनली. इनकेस आपको नहीं समझ में आ रहा, आई टेल यू. अगर आपके पास, एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आपके पास 15 रुपीज़ है इन टोटल, ठीक है, आपके पास 15 रुपीज़ है. फाइन. उसमें से आपने 5 रुपीज़ की चॉकलेट ले ली, आपने 2 रुपीज़ आपने किसी को दे दिए, एंड 3 रुपीज़ आपने उससे आप कुछ अपने मनपसंद कुछ खरीद के ले आए. ओके, आई नो आजकल 5 रुपीज़ 2 रुपीज़ 3 रुपीज़ में आपके पसंद का कुछ नहीं मिलता है, बट स्टिल मेरे टाइम पे तो ऐसा ही था व्हेन आई वाज अ किड. सो फाइन. तो अब कितना हो गया टोटल, आपके पास टोटल कितने रुपीज़ थे, टोटल आपके पास थे 15 रुपीज़. उसमें से आपने -5 करो, -3 करो एंड -2 करो, क्योंकि इतने तो आपने स्पेंड कर दिए. तो आपके पास कितने बचे, 15 - 5 10 10 - 3 7 7 - 2 5 बचे. तो अब आपको बच्चों क्लियर हुआ इसमें से क्या करना है आपको. तो इसका और इजी मेथड क्या है, आप ये भी तो कर सकते थे, 5 + 3 + 2 करके डायरेक्टली 15 में से माइनस कर देते, तो भी वही आता है आंसर, राइट. 5 + 3 8 8 + 2 10, 15 - 10 क्या होता है 5, तो भी वही आता. तो बस आपको वही करना है. यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप
ये तीनों को ऐड करके जो ये 3 मनी स्पेंट है उनको ऐड करके 160 में से माइनस कर दोगे. ओके, सो देयरफॉर आप लिखोगे देयरफॉर सेविंग्स इक्वल्स टू 160 माइनस ब्रैकेट, बिकॉज मुझे ऐड करना है. आप जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 6 5 30 0 3. ओके, 133 अपॉन 5. ठीक है, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया 26 इंटीजर 3 अपॉन 5 को. देन 50 इंटीजर 1 अपॉन 2, क्या होगा 101 अपॉन 2. ओके, एंड 16 इंटीजर 2 अपॉन 5. ओके, सो 82 अपॉन 5. अब आपको ये आता है ऐड करना. ऑब्वियसली हमने किया एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स. आप ये तीनों को पहले ऐड करोगे और 160 में से माइनस करोगे. दैट वुड बी योर सेविंग्स. आई गेस शायद डेसिमल में आ सकता है आंसर. नॉट एन इश्यू. अगर डेसिमल में आता है तो यू कैन राइट इन डेसिमल और इन मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म ऑल्सो. आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन था. दैट इज नॉट एन इश्यू. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप इट इज क्लियर. सी मैं देखो पूरा सम नहीं सॉल्व करूंगी. अब आपको ये एक रिवीजन काइंड्स हो जाएगा. मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था. सो आप इजीली अब ये सॉल्व कर सकते हो. आई विल मूव टू द नेक्स्ट सम सो दैट वी कैन कवर अप मोर सम्स इन लेस टाइम. Yes students, I hope you all will cooperate and you all are understanding by this. चलो, I'll move to the next sum now. Fifth sum that is. Okay, without wasting much time, I'll move to the fifth sum. Fifth sum. Okay, now fifth sum I guess little bit different आएगा. देखते हैं क्या है. Find the cost of 3 integer 2.5 meters of cloth at rupees this per meter. ये तो बहुत ही सिंपल है. हमको क्या दे रखा है? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर दे रखा है मेरे को. पर मीटर का मतलब क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ. कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ कितना दे रखा है मुझे? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रुपीज 63 इंटीजर 3 अपॉन 4. ओके, एंड मुझसे पूछा है कि अगर 1 मीटर क्लॉथ का इतना रुपीज है तो 3 इंटीजर 2 अपॉन 5 मीटर क्लॉथ का कितना होगा. ये तो बहुत सिंपल है. क्या होगा बच्चों? इसमें हम क्या करेंगे? बहुत सिंपल सा है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. अगर 1 का इतना है तो 3 इंटीजर 2/5 का कितना होगा? फर्स्ट कन्वर्ट इन प्रॉपर फ्रैक्शन में ये दोनों को एंड देन यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई. ओके, मल्टीप्लाई 63 इंटीजर 3 अपॉन 4 into 3 integer 2 upon 5. Okay, what you will do, you just have to convert into improper fraction and multiply and you will get the cost of 3 integer 2 upon 5 meter of cloth, that is 17 upon 5 meter of cloth. Okay students, so lastly you will write therefore cost of, see whatever answers you are getting, either you can write in mixed fraction or in decimal, but better you write in mixed fraction because in question also the answers have been given in mixed fraction. Okay, so you can write in mixed fraction. So cost of 3 integer 2 upon 5 meter cloth is whatever answer you get by multiplying this. ओके स्टूडेंट्स, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट द यूनिट. कॉस्ट आपको पता है किस में होगी? रुपीज में होगी. ऑब्वियसली यहाँ पे दे रखी है हमको, तो आप यूनिट्स मत भूलना. यू कांट जस्ट राइट द वैल्यू. यहाँ पे जो भी आप वैल्यू लिखोगे उसके साथ में आएगा रुपीज. अगर मीटर कुछ लेंथ है तो मीटर, जैसे प्रीवियस सम ऑल्सो फोर्थ सम में भी आपका यहाँ पे आएगा रुपीज में आएगा आपका आंसर, राइट? बिकॉज वो सेविंग्स है, मनी है. ओके, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस फिफ्थ सम. सिमिलर, तो आपको सिर्फ सोचना है कि अगर 1 मीटर का इतना है तो इतने का कितना, तो आपको डायरेक्टली समझ में खुद ही समझ में आ जाएगा कि यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई. दैट्स इट. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. आई मूव टू द नेक्स्ट सम नाउ. See, in less time we can do many sums in this because it is very simple and you have already done this. अगर ये हमारे first exercise में आता तो maybe हमको कुछ problem face करना पड़ता, but no, now we are doing at this as almost the last exercise, so we know how to do quickly the multiplication, addition, subtraction, everything we have learnt. So I'll move to the sixth sum now. I'll explain you sixth sum. It is as similar as fifth, I guess. A car is moving at an average speed of 60 integer 2/5 kilometer per hour. ओके, व्हाट डज दैट मीन? फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टेटमेंट का मतलब मैं समझाना चाहूंगी. व्हाट इज दैट कि एवरेज स्पीड 60 इंटीजर 2.5 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो 1 आवर में कितना कवर कर रही है डिस्टेंस? 60 इंटीजर 2/5 किलोमीटर. वो 1 आवर में 60 इंटीजर 2.5 किलोमीटर कवर कर रही है. हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 6 इंटीजर 1/4 आवर?
ठीक है, तो अगर 1 आवर में इतना जा रही है तो 6 इंटीजर 1/4 आवर में कितना? सिंपल, as similar as fifth sum. Okay, so what you will do, convert into improper fraction and then cross multiply. You have to multiply 60 integer 2/5, 6 integer 1/4, and then answer you will get in which unit? Kilometer. The answer, whatever answer you get, okay, that is in kilometer. फाइन, बहुत इजी है, रिलेट कर पा रहे हो आप. 1 आवर में इतना, तो इतने आवर्स में कितना. ओके, जो भी इंफॉर्मेशन दे रखे आप उसको लिख दो, बहुत सिंपल हो जाएगा. सिर्फ ओरली मत सोचना. इन केस यू आर गेटिंग कंफ्यूज फॉर सम रीजन, जस्ट राइट. जब आप लिखते हो ना तब आपको और क्लियर होता है कि आपको कैसे उसको आगे करना है. ओके, जब आप लिखते हैं ना हम, तब हमको समझ में आता है. सिर्फ हम पढ़ते रहेंगे तो सकते हैं हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बट नो, व्हेन यू राइट यू अंडरस्टैंड दैट कि हाँ ये इसमें ये है, ये यूनिट दे रखा है, शायद मेरी मिस्टेक यहाँ हो सकती है. सो first convert into improper fraction and then you multiply and you will get your answer. Again I'll say you can write your answer in mixed fraction. Better you write in mixed fraction finally, so that it is like appropriate according to the question. Okay students, fine. I hope I'm not rushing and I'm very clear, because the sums are similar. We are not learning anything like much new, but it is application, like how we apply in day to day life of this multiplication, addition, subtraction of rational numbers. Okay, so I guess next sum also we can do very easily. I'll just guide you so that you can do the sums. Fine. So I'll move to the next sum students. 7th sum. See, this is a recorded lecture, so you can watch again and understand the sums. आराम से आप बैठ के 2-3 बार देखो उसको. आप sums एक सम समझो, पहले पॉज करो, समझ लिया वो सम, पहले प्रैक्टिस करो, देन मूव टू द नेक्स्ट सम. ऐसा नहीं कि बैठ के आराम से मूवी की तरह पूरा वीडियो देख रहे हो फिर आप बुक उठाओगे एक सम करने के लिए. नो, you have to do like I am teaching you. एक सम किया पहले complete, then move to the next sum. जब तक वो एक सम क्लियर नहीं हो, don't move to the next sum. ऐसा नहीं कि चलिए नहीं समझ में आया अब हम दूसरा कर लेते हैं, दूसरा तो आ ही जाएगा. No students, जब तक एक क्लियर नहीं हो दूसरे पे मत जाओ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. और ओके फाइन, अगर बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं तो ठीक है आप नेक्स्ट पे जाओ, फिर उसको थोड़ी देर बाद देख लो, मे बी आपको समझ में आ जाएगा. बट द बेनिफिट ऑफ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर इज दैट ओनली कि आराम से आप उसको 2-3 बार देखो, 4-5 बार देखो, जितनी बार देखना है आपके पास है वो वीडियो आपके लिए ही है. यू कैन वॉच इट एज मेनी टाइम्स यू वांट एंड देन यू कैन सॉल्व द सम. ओके स्टूडेंट्स, फाइन. आई मूव टू द नेक्स्ट सम नाउ. Find the area of a rectangular park which is 36 integer 3/5 meter long and 16 integer 2/3 meter broad. ठीक है, अब ये क्या दे रखा है मुझे? एक रेक्टेंगुलर पार्क है. रेक्टेंगल का मतलब तो सबको पता है. सॉरी, आई एम बैड विद ड्राइंग. ओके, प्लीज एडजस्ट. ओह, इट्स गुड, फाइन. अब ये क्या देख रहा है? इसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है मुझे. ओके, लेंथ और ब्रेथ दे रखी है मुझे. तो अब मुझे लेंथ क्या दे रखी है इसकी? 36 इंटीजर. लॉन्ग का मतलब हुआ लेंथ. ओके, 36 इंटीजर 3/5 मीटर. फाइन. एंड ब्रेथ का दे रखी है मुझे 16 इंटीजर 2/3 मीटर. ओके, आप एक्सचेंज करके भी लिखो तो भी कोई इश्यू नहीं है उसमें. 16 इंटीजर 2/3 मीटर. ब्रॉड का मतलब हुआ ब्रेथ. फाइन. अब क्या करना है? एरिया ढूंढना मुझे. एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला क्या होती है? कुछ फॉर्मूला होती है क्या कि ऐसे ही ढूंढ लेते हैं हम? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? ये मैंने डायग्राम आपके लिए ड्रॉ किया ताकि आपको समझ में आए. इनकेस आप कुछ कंफ्यूज हो तो आपको देख के समझ में आ जाएगा. क्या करना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. तो आप क्या करोगे? यहाँ पे भी आपका मल्टीप्लीकेशन है, सेम एज द प्रीवियस 2 सम्स व्हाट वी हैव डन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे एंड मल्टीप्लाई दोज 2 नंबर्स एंड फाइनली यू आर गेटिंग योर आंसर. अच्छा, बाय द वे जो आंसर आएगा उसका यूनिट क्या होगा? सोचो जल्दी बोलो. क्या होगा उसका यूनिट? होगा मीटर स्क्वायर. ओके, रिमेंबर एरिया का क्या होता है यूनिट? मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है. सो यूनिट आप उसकी क्या लगाओगे? मीटर स्क्वायर. जो भी आंसर आएगा उसका होगा आगे लगेगा मीटर स्क्वायर. बस सिंपल हो गया सम. यही करना था आपको. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करो लेंथ इनटू ब्रेथ. वेरी सिंपल. ये स्टूडेंट्स, सो बस ये तो कितने सिंपल सम्स आप करने बैठोगे ना तो बोलते मजा आएगी. आप लगेगा कि और करते हैं सम्स और करते हैं सम्स. ऐसा नहीं है कि 1-2 सम करके बोर हो गए. वो तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है. ये तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा. और ओके, आपको नहीं भी लगे तो आप वीडियोस देखो. आई एम वेरी श्योर कि आपको इंटरेस्टिंग लगेगा. आप 2-3 बार वीडियो देखोगे, जितनी बार भी आप देखोगे यू विल लाइक इट. यस स्टूडेंट्स, फाइन. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सम ऑल्सो.
बहुत इजी सम्स लग रहे हैं मुझे लग रहा है कि मैं फिनिश नहीं करूँ उसको इतनी जल्दी। आप तो फटाफट ये तो आप इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो 5 मिनट्स में कर दोगे, पर मुझे तो थोड़ा सा ज़्यादा वर्क देना है, नॉट फॉर जस्ट 5 मिनट्स। ओके, सो मैं मूव करती हूँ नेक्स्ट सम पे, सो दैट लाइक जब तक सिमिलर सम्स है आई डू, अगर मुझे लगा कि कुछ नया है तो स्टॉप ऑटोमेटिकली, सो डोंट वरी स्टूडेंट्स। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड, ईच ऑफ which साइड मेजर्स 8.5 मीटर्स। ये तो मुझे लग रहा है बहुत ही ज्यादा इजी है, पिछले वाले सम से भी। अब एक स्क्वायर प्लॉट है, पहले वाले में कौन सा था, रेक्टेंगल प्लॉट, अब क्या है, एक स्क्वायर प्लॉट। वाह, ओके, नाउ क्या दे रखा है, उसकी एक साइड ही दे रखी है मुझे, एक साइड से मैं कैसे एरिया ढूंढूंगी। ओह हाँ, स्क्वायर का एरिया तो क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, दैट यू हैव टू गेस नाउ। अब मैं ये आप पे छोड़ रही हूँ कि इतना सिंपल सम अगर मैं ही बताऊंगी तो बच्चों आप क्या करने वाले हो। सो एरिया ऑफ स्क्वायर आप फॉर्मूला लिखोगे यहाँ पे, एंड फिर वो फॉर्मूला पे आप वो सम करोगे। सो इट इज अ काइंड ऑफ सरप्राइज टेस्ट काइंड ऑफ एक सम के लिए कि आपको ये खुद से करना है, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप कर लोगे, इसमें कुछ टफ नहीं है बिल्कुल भी। ओके, सो एरिया ऑफ स्क्वायर आप फॉर्मूला लिखोगे और उसके आगे सम सॉल्व कर दोगे, एंड अगेन यूनिट आप कौन सी लगाओगे, मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, हो भी गया ये सम, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके जो भी फॉर्मूला है उसमें अप्लाई कर दो, वेरी सिंपल। ओके, एंड ये स्टूडेंट्स बिफोर आई फॉरगेट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट अगर आपका आंसर्स आपके पास टेक्स्ट बुक है, आप पीछे से एनी टाइम आंसर चेक कर सकते हो। सिर्फ एक आंसर के लिए अगर आपको कोई मेजर डाउट है यू कैन सेंड मी, एंड आंसर्स के लिए भी यू कैन सेंड, नॉट एन इशू। स्टिल अगर आपको एक बार आंसर कंफर्म ही करना है तो बैक ऑफ दी बुक में से आप कंफर्म कर लो, आपको लग रहा है कि रॉन्ग आया है तो एक बार फिर से सॉल्व करके देखो, देन यू सेंड मी पिक एंड आई विल क्लियर यू आउट। तो इससे क्या आपका भी टाइम बचेगा एंड यू विल बी एबल टू डू फास्ट सम्स, ठीक है। तो आप पीछे बैक ऑफ दी टेक्स्ट बुक से आप चेक कर सकते हो, अपने आंसर्स दे ही रखे हैं, हम क्लास में भी ऐसे ही करते हैं कि एक बार पीछे से देख लेते हैं कि आंसर करेक्ट आया है ना हमारा। हाँ, पर ऐसा नहीं कि आप सारे आप सिर्फ आंसर देख देख के लिख दोगे, नो, यू सॉल्व ऑन योर ओन एंड देन आप पीछे से आंसर अपना चेक कर लो, सो दैट वो आपके लिए ईजी हो जाए। ओके, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट सम, लेट मी रीड इफ इट इज सिमिलर ओनली। 1 liter of petrol cost rupees this, 9 sum ना, राइट, हाँ। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 34 liters ऑफ पेट्रोल। बहुत सिंपल लग रहा है ये तो मुझे, हाँ ऐसा किया ना हमने कोई सम, आई गेस ये 5th सम जैसा है ना। 5th सम में भी यही था, 1 मीटर का दे रखा था, इतने मीटर्स का फाइंड आउट करना था, 1 लीटर का दे रखा है, 34 लीटर्स का फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चलो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे so that you remember and you will be able to do the sums. Okay students, see I'm not rushing, I'm just seeing that बहुत ही similar sums है, तो आप एक बार में करने बैठोगे तो आपका फ्लो रहेगा, फिर बाद में वही चीज से मैं स्टार्ट करूंगी तो आप बोर हो जाओगे। ओके, सो एक बार में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, तो हम फिनिश ऑफ कर दें तो इजी काम आपके लिए भी हो जाएगा, टाइम भी बचेगा एंड हम थोड़ा नेक्स्ट चैप्टर पे भी जल्दी पहुंच पाएंगे। ओके फाइन, सो क्या दे रखा है, 1 लीटर का कॉस्ट दे रखा है, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल कितना है, ₹63 इंटीजर 3/4। आई नो अभी तो इतना नहीं है, अभी तो बहुत एक्सपेंसिव हो गया पेट्रोल, बट अब कोड बुक में दे रखा है, RS अग्रवाल ने हमको इतना लीटर, 1 लीटर का इतना रुपीस बोला है, तो हमें तो यही लेना पड़ेगा। फाइन, सो कॉस्ट ऑफ 34 लीटर ऑफ पेट्रोल कितना, बहुत सिंपल है ये तो, आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई, आई मीन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, 34 इंटू 63 इंटीजर 3/4, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। किस में आएगा आपका आंसर, रुपीज में, दैट्स इट, बस यही करना है आपको। 1 लीटर का दे रखा है इतना है, तो 34 लीटर का कितना। ओके स्टूडेंट्स, फाइन, सो आई होप इट इज ऑल वेरी सिमिलर ओनली, आप एक बार में करने बैठोगे तो फ्लो में आपके सम्स हो जाएंगे। ओके फाइन, सो आई सी वन लास्ट सम नाउ, one last sum. Okay, 10 sum I'll do and then we will stop and then you can cover up the rest of the 11 sum से हम बाद में start कर सकते हैं। 10th sum, an aeroplane covers 1020 kilometer in an hour, how much distance will it cover in 4 integer 1/6 hours। ठीक है, सेम है, 1 hour में वो कितना कवर कर रहा है डिस्टेंस, 1020 किलोमीटर, तो 4 इंटीजर 1/6 hours में वो कितना करेगा। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई अगेन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो 4 इंटीजर 1/6 इंटू 1020, दैट इज 25/6 इंटू 1020, आपका आंसर किस में आएगा,
किलोमीटर्स में। ओके, अगेन आई रिपीट कि जो भी आंसर आया आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो, अगर वो आ रहा है तो होल नंबर आ रहा है तो नॉट एन इश्यू, फाइन, नो नीड टू कन्वर्ट इन डेसिमल, स्टिल इफ यू वांट दैट इज ऑल्सो फाइन विथ मी, नो इश्यूज, बट बेटर है क्या मिक्स फ्रैक्शन में छोड़ दो आंसर को अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है तो। ओके, सो दैट विल बी द अल्टीमेट आंसर। Fine students, so I would like to stop over here. Next few sums are also very easy, no need to panic at all, but still I think it will be a burden then to do this many sums. Fine, so you have tomorrow when you will watch the video in the morning itself, आपके पास कल का पूरा दिन रहेगा, परसों का रहेगा, and then Friday तो you know we have a Zoom class, so we will be meeting on Zoom. फाइन, सो जूम पे, और हाँ अगर आपने जूम क्लास अटेंड करी आपको पता है मैं कभी भी सरप्राइज टेस्ट भी ले सकती हूँ, सो कीप ऑन रिवाइजिंग, ऐसा नहीं बस ये पढ़ा खत्म मैथ्स अब हम मस्ती करेंगे, नो, कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन, कोई भी सम उठाओ पीछे का जितना भी हमने फर्स्ट चैप्टर में किया है करते रहो, सो दैट आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ये सब में आप कंफ्यूज ही नहीं होगे, प्रॉपर्टीज कर लो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर क्या होती है, प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग, सो अगर आपके कंसेप्ट एकदम दिमाग में बैठ जाएंगे, स्कूल खुलेगी तो आप फटाफट मुझे आंसर्स दे पाओगे, अब बोलोगे मैम रिविजन की जरूरत ही नहीं है हमें, right? Okay, so I hope this much is clear to you. We'll meet again soon. Please watch the video in the morning itself as soon as you receive it. Sit properly, don't harass your parents, take help from them, take help from me, we are always there for you. Okay, study nicely, enjoy. Okay, stay home, stay safe.